Welcome back to our channel. Myself Priyanka Singh from Thakur Publication Private Limited. Today my topic is from UP BCom second semester subject Financial Accounting book, chapter number 3, Royalty Account. So my today topic is copyright royalty. In copyright, one person means the creator creates a thing with the help of his idea. That idea possesses the copyright. Means, let understand with the help of the example. Here the creator is a author. Creator is a author. Author give creation to his book. To his book. So author possesses copyright on this book. Why? Because the idea of the content, the writing of that book is of author. So author possesses the copyright. Okay, on this book. Here in royalty, the author is a landlord because he has a book. So author is treated as a landlord. Okay, creation is book, so the book has copyright, and the third person also come into picture. Who is that third person? Third person is the publisher. He is the publisher. What publisher do? He approaches author and he tells the author that he want the right of that book. So for getting this right, he pay him a royalty. That royalty is called as a copyright royalty because the author has a copyright on this book. So publisher, when gets the right on this book, that the term is used for getting the right, and in term of that he pay him some monetary benefits. That is called as a copyright royalty. Okay. So publisher is a third person. Here publisher is called in royalty. Publisher will be treated as a lessee. Okay. Author will be treated as a landlord, mean the lessor. Copyright is on the book, and publisher will be treated as a lessee. Okay. So here the two person is author and publisher, means lessor and lessee. What he pay to him is a copyright royalty. So this is the situation of copyright royalty. When copyright royalty happens, when these two people get involved in the transaction. Now the calculation of copyright royalty, how we calculate, how the publisher will pay to the author the royalty amount, on what basis? The basis of copyright royalty will be the number of books sold by the publisher. See, what publisher do? He acquire the right of the book. He make the book in the presentable form. He puts the cover on it. He puts the presentation format of the book in the presentable form, and then he market that book. He distribute that book to the market and give the supply to the students, college, suppliers, and with this he sell the book. When he sell the book, on that book he gets money. Number of book he sold to the suppliers, schools, colleges, library supplies, whatever amount he will get, on the basis of number of books sold, he will pay to the author. Okay, the basis of payment of copyright royalty will be the sale proceed, number of books sold by the publisher. Okay, so the formula for calculating the copyright royalty will be number of books sold by the publisher into price of that book. Means each book has its own price. Okay, then we'll multiply. Suppose the book published by the publisher will be 1,000 rupees, and per rupees is of 1,000 copies,
and per book is of 100 rupees. So number of book published or sold by him, by publisher, means the lessee, and per book cost 100 rupees. So how much will be the sale proceed? Sale proceed will be 1 lakh rupees. So on this 1 lakh rupees, this is the amount which he will be liable to pay to the author, means the landlord. Now this number of books sold consists of what? This number of books sold consists of the opening stock of book. Opening stock means sometime we had already published that book, and after publishing we have sold that book, and after selling that book, some book has not been sold. At the year end, the books which has not been sold, that is called the opening balance for the next year. Okay, so in the while calculating the number of books sold, if in the examination these items, these things are given, we have to consider it like this. ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे? कितनी बुक हमने बेची, नंबर ऑफ बुक पब्लिश ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर का हमारे पास कुछ बुक्स बची थी, उसके साथ हम प्लस करेंगे जो इस साल हमने प्रिंटिंग की है, पब्लिश की है, तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक सेशन में हमने जो भी बुक पब्लिश की है उसको प्लस कर लेंगे। फिर हम उसमें से माइनस क्या करेंगे? हम उसमें से माइनस करेंगे कुछ बुक हम टीचरों को एज ए सैम्पल देते हैं या कॉलेज में सप्लाई करते हैं, या कुछ बच्चों को देते हैं एज ए स्पेसिमेन, जिसको टर्म हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं सैम्पल को, तो उस बुक्स को हम माइनस कर देंगे, बिकॉज उस पर तो हमें कोई पैसा मिल नहीं रहा है, कोई अमाउंट, जैसे 100 रुपये की बुक मैंने कहा तो बच्चे कुछ दे नहीं रहे हैं उसमें, हम उनको फॉर एन एडवर्टीजमेंट पर्पस वो बुक फ्री में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कोई हमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। बट हाँ, हमने वो बुक पब्लिश की तो हमने एक्सपेंस तो किए ना उस पर, तो इसलिए हम वो बुक माइनस कर देंगे जितने भी हमने सैंपल दिए हैं। प्लस और क्या माइनस करेंगे? कुछ बुक डिस्ट्रॉय हो गई है, सपोज़ करो प्रिंटिंग हमारा यहाँ लखनऊ में सेटअप है और हम सेल कर रहे हैं उसको राजस्थान में, तो यहाँ से वहाँ ले जाते हुए कुछ बुक डैमेज हो गई है, तो कॉस्टिंग तो हमारी पड़ी, मगर बुक डैमेज हो गई तो उसका सेल वैल्यू जनरेट नहीं हुआ, तो उस बुक्स को हम डिस्ट्रॉयड बुक को भी माइनस कर देंगे। देन अनसेलेबल बुक, तो कुछ बुक ऐसी होती है कि जो हमने सप्लायर को दी बट वो पूरी की पूरी 50 कॉपी को सप्लाई नहीं कर रहा, मतलब बेच नहीं पा रहा, तो जो बुक नहीं सप्लाई हुई है, जो नहीं सेल हुई है, उसको भी हम माइनस कर देंगे। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस इस साल जो बुक बची, तो इस साल हम क्या क्या माइनस करेंगे? स्पेसिमेन कॉपी को प्लस कर देंगे डिस्ट्रॉय कॉपी से, मतलब डिस्ट्रॉय जितनी बुक हो गई है वो प्लस करेंगे, जो बुक नहीं बिकी उसको प्लस करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गई उसको प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करके हम इस बुक पब्लिश जितनी बुक्स हमने प्रिंटिंग की है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमने कितनी बुक बेची है इस समय, ठीक। और उसी पे हम रॉयल्टी पे करेंगे ऑथर को। तो ये कैलकुलेशन है कॉपीराइट रॉयल्टी निकालने का, ठीक। ये डिटेल्स हमें एग्ज़ाम में प्रोवाइडेड होगा, जिसके हेल्प से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, तो इससे हमें नंबर ऑफ बुक मिल जाएगी। ओके, फिर इसमें एक चीज़ और होता है कि ऑथर को हर साल अपनी बुक को रिवाइज़ करना होता है। इन केस ऑथर अपनी बुक को रिवाइज़ नहीं करता है तो डेफिनेटली अगर कुछ चेंजेस आ गए सिलेबस में और ऑथर बुक नहीं रिवाइज़ कर रहा है, तो पब्लिशर उस बुक को अगर प्रिंट करेगा तो वो उसकी सेल इफ़ेक्ट होगी। तो अगर कुछ ऑथर ने हर साल या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अगर उसने रिवाइज़ नहीं किया
तो जो भी एक्सपेंस बियर होगा पब्लिशर को वो कंपनसेट करेगा ऑथर से, मतलब कि वो एक्सपेंस जो वो खुद लगा रहा है उस बुक के ऊपर वो रॉयल्टी अमाउंट में से माइनस कर देगा। सपोज़ करो पब्लिशर ने अपने खुद के स्टाफ उसके पास है, एडिटिंग स्टाफ, राइटिंग स्टाफ, मैटर रहेगा ऑथर का, बट उसमें उसने कुछ अपना एडिटिंग स्टाफ को इन्वॉल्व किया उस मैटर को रिवाइज कराने के लिए, तो जो भी एक्सपेंस उसका लग रहा है उस ड्यूरेशन में उस बुक को रिवाइज करने के लिए, तो वो उसमें ऑथर को जो रॉयल्टी देता है उसमें से वो माइनस कर देगा। तो ऑथर को अगर उसने रिवीजन नहीं किया बुक को तो पब्लिशर जो भी एक्सपेंस इन शॉर्ट पे करता बियर करेगा वो कॉपीराइट रॉयल्टी में से कंपनसेट कर लेगा। एग्ज़ाम में एडवांस रॉयल्टी का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। एडवांस रॉयल्टी की सिचुएशन तब आती है जब पब्लिशर अपने ऑथर को कुछ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पहले से दे देता है, उसको हम कहते हैं एडवांस रॉयल्टी। इन केस एडवांस रॉयल्टी का सिचुएशन जनरेट होता है तो हमें एडवांस रॉयल्टी अकाउंट ओपन करना होगा। एडवांस रॉयल्टी अकाउंट में जब ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस मीन्स हमने साल के पहले या साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है या जो हमारा पेमेंट ईयर होगा उसके पहले हमने दे दिया है तो वो एडवांस रॉयल्टी कहलाई जाती है। तो अब इस ड्यूरेशन में हम उसको रॉयल्टी तो पे करेंगे। एडवांस मतलब हमने पूरी अमाउंट नहीं पे की है, कुछ अमाउंट उसमें से उसको पे कर दिया। सपोज़ करो हमें ₹1,00,000 देना था, ₹1,00,000 देना था, तो हमने उसको 20,000 एज एन एडवांस रॉयल्टी पे कर दी है। तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर तो रिमेनिंग अमाउंट तो हम पे करेंगे ना, तो उस रॉयल्टी जो हम उस फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे एडवांस रॉयल्टी को। तो हमें क्या खोलना कि हमें एक अकाउंट स्पेशल खोलना होता है उसमें, जिसको कि हम कहते हैं कि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट था कॉपीराइट रॉयल्टी का। अब चलते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से हमको समझ लेते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी निकालते कैसे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या कह रहा है कि राधा प्रकाशन हैड पब्लिश अ बुक ऑन बैंकिंग ऑपरेशन। तो पब्लिश किसने की है? राधा प्रकाशन ने। राधा प्रकाशन इज अ लेसी और द पब्लिशर। ठीक है, इन्होंने पब्लिश की बुक जो कि बैंकिंग ऑपरेशन थी। बुक का नाम जो था वो बैंकिंग ऑपरेशन है। रिटन बाय मिस्टर तिवारी। तो तिवारी कौन हो गए? ऑथर हो गए। तिवारी हमारे लैंडलॉर्ड हो गए, हमारे लेसर है, हमारे ऑथर है। तो तिवारी हमारे लेसर हो गए, हमारे ऑथर है। तो इनकी क्या क्रिएशन थी? मिस्टर तिवारी की क्या क्रिएशन है? ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। इन्होंने क्या क्रिएट की? बैंकिंग ऑपरेशन बुक को क्रिएट की। अब उस पर किसने काम किया? उस बुक पे, उसकी फॉर्मेटिंग पे, उसकी मार्केटिंग पे, उसके सेल पे किसने काम किया? वो आपके लेसी ने काम किया, राधा प्रकाशन ने किया। ओके, फॉर ईच सोल्ड कॉपी द रॉयल्टी विल बी पेड एट ₹5। एक बुक पे वो रॉयल्टी पे करेगा। कौन पे करेगा? आपका पब्लिशर। वो ₹5 करेगा। एक बुक के ऊपर जो रॉयल्टी पब्लिशर पे कर रहा है बैंकिंग ऑपरेशन की बुक पे, वो ₹5 कर रहा है। ठीक है, रॉयल्टी आर सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ ₹30 पर ईयर। तो रॉयल्टी पे जो मिनिमम रेंट देना है उसको, वो 30,000 पर ईयर दिएगा। तो मिनिमम रेंट क्या है उसका? 30,000 पर रेंट देना है उसको। एज पर द रॉयल्टी एग्रीमेंट अ राइट ऑफ रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इज कंसिडर। तो रिक्यूपमेंट का आपको टाइमिंग कितने ईयर दिया गया? 3 ईयर। 3 साल के अंदर, 3 साल तक आप रिक्यूप कर सकते हो अगर कोई शॉर्ट वर्किंग जनरेट होती है। ठीक है, तो 3 साल आपका ड्यूरेशन है रिक्यूपमेंट का। और उसके बाद हमें ईयर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ कॉपी प्रिंट जो राधा प्रकाशन ने की है, और नंबर ऑफ कॉपीज़ जो क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब कि 2000 नंबर इस ईयर में इतनी कॉपी प्रिंट की है और इतनी कॉपी जो कि बेचने के लिए सप्लाई की थी बट बिकी नहीं है, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, उस साल का जो नहीं बिक पाती।
तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रॉयल्टी एंड शो द एनालिटिकल टेबल। तो आपको यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट करना है और एनालिटिकल टेबल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम रॉयल्टी का टेबल बना लेते हैं। सॉरी, हाँ, रॉयल्टी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमने ईयर का कॉलम बना लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉपीज़ बना ली, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉपी बना ली, फिर नंबर ऑफ कॉपी प्रिंटेड जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड हमने बना लिया, फिर रॉयल्टी बना लिया। अब क्या इसका जो फॉर्मूला जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है 17-18, तो ओपनिंग इसके पहले कुछ भी नहीं थी, कोई बुक प्रिंट नहीं हुई थी। तो जब प्रिंट ही नहीं हुई थी तो ओपनिंग कुछ होगा ही नहीं, मतलब पहले की बची नहीं थी। इन शॉर्ट पहले की कोई बची नहीं थी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ईयर इन विच बुक हैज़ बिन प्रिंटेड, सो ओपनिंग कुछ भी नहीं है। तो पहले साल में कितनी बुक प्रिंट हुई? पहले साल में 4000 बुक प्रिंट हुई है, ठीक है। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पहले साल में 4000 बुक प्रिंट हुई है और क्लोजिंग स्टॉक मतलब 200 बुक बच गई है, 200 बुक वो सेल नहीं कर पाया है, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉपी कितने उसने बेची? ये तो कुछ था नहीं, ओपनिंग प्रिंट 4000 हुई है। उसके बाद उसने जो नहीं बेच पाया है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, वो 200 रुपया है, 200 कॉपीज़ है, सॉरी। तो जब 4000 कॉपी में से आप 200 कॉपी माइनस करेंगे तो बेची कितनी उसने? 3800, ठीक है। अब एक कॉपी पे वो रॉयल्टी कितना पे कर रहा था? 5 रुपीज़, ठीक है। एक कॉपी पे 5 रुपीज़ वो रॉयल्टी पे कर रहा था। तो बेची तो उसने 3800 कॉपी है ना, तो इस 3800 कॉपी को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 19000 मिलेगा। तो 19000 क्या है? वो हमारी रॉयल्टी अमाउंट है नंबर ऑफ कॉपीज़ पे, मतलब 3800 कॉपीज़ पे। नेक्स्ट ईयर वैसे ही हम लिखेंगे 18-19। अब इस टाइम पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि जो बुक नहीं बिची फर्स्ट ईयर में वही तो हमारी ओपनिंग होगी, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो जो 17-18 में नहीं बिकी या क्लोजिंग थी वो हमारी ओपनिंग हो गई। अब ओपनिंग हो गई, ठीक। नंबर ऑफ कॉपी 18-19 में 6000 हमने प्रिंट की, तो वो प्लस कर लेंगे हम। फिर बची कितनी? 400 कॉपीज़ हम नहीं सेल आउट कर पाए, मतलब कि प्रकाशन, राधा प्रकाशन नहीं सेल आउट कर पाया। तो अब वो क्या करेगा? जो पहले की बची थी उसमें वो प्लस कर लेगा, इसको 200 को प्लस करेगा 6000 से, ठीक है। उसमें से वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देगा, तो क्या आएगा? 5800। जब आप 200 प्लस 6000, दैट इज 6200 माइनस 400, what you will get? You will get 5800. This 5800 copies has been sold by the Prakashan, by the publisher. So he'll multiply this with rupee 5. So how much he'll get? He will multiply this with rupees 5. He will get rupees 29,000. In the next year again the same process will be happen. 1920 में जो बुक क्लोजिंग थी उसकी 400 कॉपी, ठीक है, वो उसकी ओपनिंग हो जाएगी। 400 कॉपी उसकी ओपनिंग हो गई। करंट ईयर में प्रिंट कितना किया? 8000 किया, और क्लोजिंग स्टॉक 800 थी। तो क्या करेगा वो? ओपनिंग को करंट ईयर के जितना भी उसने प्रिंट किया था उससे प्लस कर लेगा, माइनस कर देगा क्लोजिंग को, तो उसको मिल जाएगी नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड, दैट इज 400 प्लस 8000, दैट इज 8400 माइनस 800, what you will get? You will get 7600 multiply by 5 rupee per copy. The total amount which you will get is 38,000. This is the royalty amount which is payable by the publisher to the author. Okay, again in the year 20 and 21, how much closing stock was there in the previous year? 800. That 800 will write over here. उसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? नंबर ऑफ कॉपी प्रिंटेड। तो नंबर ऑफ कॉपी आपकी 10,000 थी, तो हम इसको प्लस कर लेंगे, देन हम क्लोजिंग स्टॉक
1000 को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9800. That 9800 will be multiplied by ₹5 and you will get ₹49,000 total royalty paid by the publisher to the author. So this is the royalty table और royalty calculation जिसमें कि हम ओपनिंग को प्लस किए हैं नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपी से, फिर माइनस किए हैं क्लोजिंग को, इससे हमें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पता चल गया और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम पर बुक सोल्ड से, तो हमें टोटल रॉयल्टी पता चल जाएगी इस तरीके से. नेक्स्ट हम क्या टेबल बनाएंगे, इस टेबल की हेल्प से हमें क्या पता चल गया रॉयल्टी. अब हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. ठीक, नेक्स्ट विल बी द एनालिटिकल टेबल. अब हमें रॉयल्टी का अमाउंट पता चल गया, अब हम एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस टेबल से हम ये रॉयल्टी का अमाउंट इस टेबल में पुट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम ईयर का कॉलम बना लिए, सेम ईयर्स रहेंगे. उसके बाद हमने रॉयल्टी का कॉलम बना लिया जिसमें कि हम जो रॉयल्टी अभी कैलकुलेट किए हैं वो हम उसमें फिगर्स डालेंगे. उसके बाद मिनिमम रेंट हमको गिवन है तो हम वो लिख लेंगे, फिर शॉर्ट वर्किंग सरप्लस हुआ या रिक्यूब करेंगे वो सिचुएशन बनाए. तो फर्स्ट ईयर में 17-18 ईयर है जिसमें कि रॉयल्टी हमने 19,000 कैलकुलेट की है विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा, तो 19,000 हमने लिख लिया. उसके बाद मिनिमम रेंट 30,000 पर ईयर है तो 30,000 लिख लिया. इसी तरीके से पहले हम रॉयल्टी और मिनिमम को फिल कर लेते हैं. 18-19 में आपका 29,000 है, 19-20 में आपका 38,000 है, फिर 20-21 में आपका 49,000 आपने रॉयल्टी ली है. 49,000 मिनिमम रेंट में 30,000 है तो आपने वो फिल कर दिया चारों साल में. उसके बाद अब देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है. ठीक है, तो रॉयल्टी जो आई है 19,000 आई है, मिनिमम रेंट जो हमको देना है 30,000 देना है, तो रॉयल्टी तो कम आई है. रॉयल्टी कम आई है मगर रेंट हमें ज़्यादा देना है, तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट. इन दैट केस शॉर्ट वर्किंग जनरेट. तो कितने का शॉर्ट वर्किंग हो गया आपका, जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 11,000 इज़ द शॉर्ट वर्किंग अमाउंट. ओके, अब उसके बाद सरप्लस नहीं है बिकॉज शॉर्ट वर्किंग है. फिर शॉर्ट वर्किंग को आप फर्स्ट ईयर रिक्यूब नहीं करोगे क्योंकि कुछ सरप्लस ही नहीं है. फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको डायरेक्ट 11,000 को, और लैंडलॉर्ड को कितना पेड करोगे विच एवर इज़ मैक्सिमम बिटवीन रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट. सो मैक्सिमम इज़ 30,000, तो यू आर लायबल टू पे 30,000 टू द लैंडलॉर्ड. ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर royalty is 29,000 and minimum rent is 30,000. So which is more, minimum rent is more, so royalty is less. So how much is the short working amount? Short working amount is of 1,000 rupees. Again the short working generates. So there is no surplus because short working is there. हम कुछ रिक्यूब नहीं कर सकते क्योंकि कोई सरप्लस ही नहीं हुआ है. फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट वर्किंग कर ले रहे हैं तो 11 + 1 इज़ 12,000 रुपीज़. लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम आपका 30,000, तो हम इसको पूरा पे करेंगे. फिर 19-20 में आपकी रॉयल्टी थी 38 और मिनिमम रेंट था 30. अब यहाँ क्या है, रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट. वेन एवर द रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ सरप्लस. हाउ मच सरप्लस इज़ देयर, ₹8,000. ओके, तो हमें 3 साल का रिक्यूपमेंट का ऑप्शन था. क्वेश्चन में दिया था 3 ईयर विल बी कंसिडर एज फॉर रिक्यूपमेंट पर्पज़. तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम तीसरे में अगर सरप्लस आया है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो कितना यूज़ कर सकते हैं, जितना आया है उतना ही. वैसे तो शॉर्ट वर्किंग 12,000 का है बट सरप्लस सिर्फ 8,000 हुआ है, तो हम ये पूरा 8,000 यहाँ रिक्यूब कर ले रहे हैं. ठीक है, इस सरप्लस को हमने यहाँ रिक्यूब कर लिया. ठीक, तो बचा कितना, 12,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, 8,000 रिक्यूब किया, तो 12 में से 8 जब जाता है माइनस करेंगे जब, तो 4,000 आएगा. 4,000 रिमेनिंग अमाउंट है. अब आप इस 4,000 को रिक्यूब नहीं कर सकते बिकॉज 3rd ईयर था ये. इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो पूरे को हम अभी तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर दिए, बाद में P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक,
इसके बाद क्या होगा, लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे, लैंडलॉर्ड को डेफिनेटली 30,000 पे करेंगे, बिकॉज 8,000 हमने रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है, तो हमारे पास सिर्फ 30,000 अमाउंट है जो कि हमने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया है। नेक्स्ट ईयर हमारा रॉयल्टी अमाउंट 49,000 है और मिनिमम रेंट 30,000 है। तो यहाँ आपका क्या हुआ सिचुएशन, रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट। व्हेनेवर द रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ सरप्लस। तो कितना सरप्लस हुआ आपका, जब आप 49,000 को माइनस करोगे 30,000 से, यू विल गेट ओनली ₹19,000, दैट इज़ द सरप्लस अमाउंट, बिकॉज रॉयल्टी इज़ मोर। So this surplus amount, now you don't have any option of recoupment, because 3 साल का सिर्फ ऑप्शन मिला था आपके पास और वो 3 साल लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। तो ये एक्सेस अमाउंट है जो कि अब आप इसको लैंडलॉर्ड को आपको पे करना होगा। तो इन दिस लैंडलॉर्ड को आप कितना पे करोगे, आपने रॉयल्टी जनरेट कितनी की थी 49,000, मिनिमम कितना है 30, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट ये लैंडलॉर्ड को पे कर दोगे, बिकॉज हम इस वक्त कोई शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एनालिटिकल टेबल हो गया 4 ईयर का। तो इसमें और पहले वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ वहाँ आपको रॉयल्टी दी जाती थी और यहाँ आपको रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है। यहाँ रॉयल्टी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड से, मतलब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने जो सोल्ड की है उसके हेल्प से आप रॉयल्टी अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे। कॉपीराइट पे एक न्यूमेरिकल अभी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी, कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹250। यहाँ जो बुक की कॉस्ट है वो ₹250 दिया गया है हमें क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद इन्होंने दिया है कि द रॉयल्टी पेबल बाय द पब्लिशर टू द राइटर। जो पब्लिशर है वो राइटर मतलब कि ऑथर को जो रॉयल्टी पे करेगा इज़ 10% द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। ठीक है, जो बुक सोल्ड, जितनी भी बुक सोल्ड होगी उसका 10% ही वो पब्लिशर को रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल ईच ईयर एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर इन द बुक ऑफ पब्लिशर। मतलब कि पब्लिशर की बुक में, मतलब कि लेसे की बुक में आपको लेजर भी बनाना है और रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जो भी कितना अमाउंट वो रॉयल्टी पेबल होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, 4 साल का डेटा दिया है जिसमें कि जो भी बुक्स उसने हर साल प्रिंट की है उसका डेटा दिया हुआ है। कितनी बुक उसने एज ए स्पेसिमेन कॉपी दी गई है, कितनी बुक उसमें से कुछ डैमेज हो गई है, सप्लाई करते वक्त यहाँ से वहाँ ले जाते हुए कुछ बुक डैमेज हो गई है, तो वो भी डेटा दिया है। और फिर कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो कि मार्केट में बुक लाई गई बट बुक नहीं सेल हो पाई, उस केस से वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया एक तरीके से। ठीक, अब पहले हम बनाते हैं रॉयल्टी अमाउंट कैसे निकालेंगे इस डेटा के हेल्प से। फर्स्ट ईयर ओपनिंग कुछ नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, लास्ट ईयर कुछ प्रिंट ही नहीं हुई तो कुछ बची ही नहीं, कुछ बची नहीं तो ओपनिंग कैसे हो सकता है, मतलब क्लोजिंग थी नहीं तो ओपनिंग हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ नील हो गया। नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड, तो नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड कितने हैं, फर्स्ट ईयर में इन्होंने 8,800 बुक को प्रिंट किया है, तो हमने यहाँ लिख दिया। स्पेसिमेन दिया है कुछ, कितना कॉपी दी है, 200 कॉपी इस प्रिंटेड बुक में से स्पेसिमेन दिया हुआ है। कुछ बुक इसी प्रिंटेड बुक में से डैमेज हो गई जो कि 100 कॉपीज़ है, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक हो गया है जो कि 700 कॉपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्पेसिमेन, बुक डैमेज और क्लोजिंग स्टॉक को पहले तो प्लस कर लेंगे। इन सारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 200 प्लस 100, 300 प्लस 700, 300 प्लस 700 डैट इज़ 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, 1000 रुपीज़ को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
7,800, हमने 7,000 रुपीज़ को माइनस किया। और 1,000 रुपीज़ कैसे आया हमारा, ये 3 को प्लस कर लोगे आप, क्योंकि ये सारी बुक एक तरीके से सेल नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिमेन दिया है तो उसका पैसा नहीं आया, डैमेज हो गई तो ऑफकोर्स वो डैमेज बुक कौन खरीदेगा, वो भी सेल नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक, ये सेल करने के लिए हम मार्केट में लाए थे, बट इतनी बुक हमसे मतलब सेल नहीं हुई, तो 700 कॉपीज़ ये होगी। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे 1000 हो जाएगा, तो प्रिंटेड कॉपी में से आप 1000 माइनस करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ सोल्ड बुक मिलेगी वो 7800 मिलेगी। अब क्या कहा था इसने कि एक बुक की जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, क्वेश्चन में दिया था प्रिंटेड बुक प्राइस इज़ 250, तो ये 250 पर बुक है। बुक कितनी सोल्ड हुई, 7800, तो हम क्या करेंगे 7800 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट इज़ 19,50,000। इस 19 लाख पे हम रॉयल्टी नहीं देंगे, बेची तो उसने इतनी है, ठीक है, मगर क्या बोला है कि वो राइटर को 10% प्रिंटेड प्राइस का, ये प्रिंटेड प्राइस है, इसका 10% ही देगा वो, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया, इसका जब 10% निकालेंगे तो 1,95,000, क्लियर। नेक्स्ट ईयर में जो क्लोजिंग थी लास्ट ईयर आपकी, जितनी कॉपीज़ आपकी बच गई वो करंट ईयर की आपकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो 700 कॉपी बच गई थी, तो आपने वो लिख दिया। नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड 10,000 है, बुक जो स्पेसिमेन की तरफ दी गई है वो आपकी 300 है, ठीक है, और डैमेज बुक 100 है, और क्लोजिंग 600 है। इसमें एक एडिशनल चीज़ हो गई, वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से अब हम उस बुक को इस बार फिर बेचेंगे, ट्राई करेंगे बेचने का, तो वो प्रिंटेड में प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे हम। तो जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपकी करंट में बुक आपके पास कितनी है, 10,700 कॉपीज़ आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल है। अब इसमें से कुछ बुक डैमेज हो गई या स्पेसिमेन में दे दी गई, उसका तो हमें प्राइस मिलेगा नहीं, तो इनको प्लस कर लेंगे हम। 300 प्लस 100 प्लस 600, तो ये कितना हो गया आपका, इनको जब आप प्लस करोगे तो 300 प्लस 100 400 प्लस 600 1000 कॉपीज़ को हम माइनस करेंगे 10,700 में से। जब 10,700 में से आप 1000 कॉपी माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 9,700। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ये इतनी कॉपी आपने सोल्ड की, एक बुक की प्राइस क्या थी 250 रुपीज़, तो 250 को हम 9,700 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपको मिला 24,25,000। इसका 10% रॉयल्टी पेबल है एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन ऑथर एंड द पब्लिशर। तो इसका 10% कितना होता है, 2,42,500। 2,42,500 will be the royalty amount for the year, for the second year. Now for the third year, what is the closing stock of the previous year? That will become the opening stock of this year, third year. The closing stock is rupees 600. That will be the opening stock for the third year. We'll write 600. Number of book printed is 15,000. Specimen copy is 500. Book damage is 200, and closing stock for the current year is 300 copies. So what we'll do, we'll first of all add this opening as well as printed book, that is 15,600, ठीक। तो ये इतनी बुक आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए 15,600। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, you will deduct this books because you are not getting money on this book, so that's why you are deducting, subtracting from the available books. How much you will minus, that is number of copy 500 plus book damage 200, that is 700, plus 700 plus 300, that is 1000 copy. Again the 1000 copy you will minus from the 15,600. 15,600 minus 1000 copies, you will get 14,600. That 14,600 is the number of books sold by the publisher for the third year. That you will multiply with the each copy price, means 250 rupees. 250 rupees. Then you will get
36,50,000 for the third year. That you will multi on this total book amount, इस पे आप 10% लगाएंगे जब, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 3,65,000। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन जो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, मतलब कि 300 रुपीज़ वो आपका ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आपने प्रिंटेड जो की है वो 17,500 की है। जो स्पेसिमेन के हिसाब से आपने बेची है वो 700 कॉपी बेची है। डैमेज है 450 एंड 450 इज़ ए क्लोजिंग स्टॉक। सो जो ओपनिंग है उसको आप ऐड कर लोगे नंबर ऑफ प्रिंटेड बुक से, ठीक। तो इसमें कितना हो जाएगा 17,800 जब आप इसको प्लस करोगे तो। फिर इसमें से आप माइनस क्या करोगे, 700 प्लस 450 प्लस 450, 450 450 कितना हो जाता है आपका 900 रुपये हो जाएगा। 900 प्लस 700, 900 प्लस 700 हो करोगे आप, यहाँ आप 1700 माइनस करोगे, ठीक। जब इसको इससे माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 16,200। इस 16,200 को आप मल्टीप्लाई करोगे 250 से। 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 40,50,000। 40,50,000 को आप 10% जब आप इस पे लगाओगे तो आपका आ जाएगा 4,05,000। 4,05,000 करंट की रॉयल्टी होगी आपकी। सो ये एनालिटिकल टेबल से हमने क्या निकाला, हमने रॉयल्टी का अमाउंट निकाला 4 साल का, क्या रॉयल्टी अमाउंट है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको पब्लिशर की बुक में लेजर अकाउंट बनाना है। तो अब हम इस पर लेजर अकाउंट बनाते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पब्लिशर की बुक में हमको लेजर बनाना है, तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट और एक बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि राइटर या ऑथर कह लीजिए आप। तो रॉयल्टी अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हम सेंटर में लिख देंगे इन द बुक ऑफ पब्लिशर, क्योंकि पब्लिशर का नाम नहीं दिया है तो हम पब्लिशर लिख दे रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, उसके बाद डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी, ठीक है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम रेंट नहीं दिया गया है। जब क्वेश्चन में आपको मिनिमम रेंट नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि देयर इज़ नो क्लॉज ऑफ मिनिमम रेंट। ऑथर और पब्लिशर के बीच में मिनिमम रेंट का क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी रॉयल्टी वो अर्न करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ बुक सोल्ड करेंगे उस पर जो भी 10% लगा के रॉयल्टी दे दिया जाएगा। तो मिनिमम क्लॉज इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, हमने देखा था कि 3 सिचुएशन होते हैं। एक तो रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो इसमें मिनिमम रेंट का क्लॉज आता है, तो ये तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा होता है रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, वहाँ भी आपको मिनिमम रेंट क्लॉज होना चाहिए तभी आप एंट्री पास कर पाओगे। बट एक जो थर्ड सिचुएशन होता है उसमें बोलते हैं कि रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट, तो उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक में मिनिमम रेंट दिया जाता है, एक में मिनिमम रेंट नहीं दिया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें मिनिमम रेंट का क्लॉज नहीं एप्लीकेबल है। तो जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो हम वही वाली पास करेंगे व्हेन द रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट और देयर इज़ नो क्लॉज ऑफ मिनिमम रेंट। तो अब एक जर्नल एंट्री पहले देख लेते हैं हम। इसमें जर्नल एंट्री पूछा नहीं गया है, बट जर्नल एंट्री अगर आप पास कर लेते हो तो आपको लेजर बनाने के लिए इजी हो जाता है। तो 3 सिचुएशंस होते हैं, जब हम पहले तो रॉयल्टी पेबल होता है, ठीक, उसके बाद पेबल मीन्स ड्यू होता है, फिर हम पेड कर देते हैं और फिर अगर कुछ बचा तो हम उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं रॉयल्टी को। तो जब आप लेसी की बुक में, पब्लिशर की बुक में एंट्री पास कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, ये केस है नो मिनिमम रेंट क्लॉज एग्जिस्ट इन दिस न्यूमेरिकल। ओके, तो ड्यू के केस में क्या एंट्री होगी, ड्यू के केस में जो एंट्री होती है वो ड्यू के केस में एक एंट्री होगी, एक पेमेंट के केस में होगी
और तीसरी क्या होती है, ट्रांसफ़र के केस में होती है। ट्रांसफ़र किस में करते हैं हम, एट द एंड ऑफ द ईयर P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो ड्यू के केस में एंट्री हम पास करेंगे वो पास करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, रॉयल्टी को डेबिट करेंगे, हम ड्यू कर रहे हैं, और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री होती है, अब उसको पे कर देंगे, जो ड्यू अमाउंट है उसी अमाउंट से हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, तो वो होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट क्या करेंगे, बैंक, पेमेंट के लिए बैंक यूज़ करते हैं। ठीक, जो अमाउंट रॉयल्टी का होगा उसी से पेमेंट करेंगे। अब ट्रांसफ़र कर देंगे, उस रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। जो ड्यू की अमाउंट होगा, ड्यू में जो रॉयल्टी अमाउंट होगा उसी अमाउंट से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्यू हो गया, पेमेंट हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी का लेजर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ठीक, रॉयल्टी कितनी थी आपकी फर्स्ट ईयर में आई थी, 1,95,000 आपकी रॉयल्टी अमाउंट थी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम ड्यू का पहले पास करते हैं। तो ड्यू में देखो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो रॉयल्टी को डेबिट करना है हमको ड्यू में। तो यहाँ हमने डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड लिखा। लैंडलॉर्ड यहाँ कौन है, राइटर है, इसलिए हमने इनको डेबिट किया है। ठीक है, कितने रुपीज़ से, रॉयल्टी के अमाउंट से करेंगे, 1,95,000 रॉयल्टी थी फर्स्ट ईयर में, तो उसी अमाउंट से हम उसको डेबिट कर दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को। ठीक, और फिर सेकेंड एंट्री में आपको उसको पेमेंट करना है। ठीक, तो पेमेंट करना है तो यहाँ रॉयल्टी का कोई मतलब एंट्री नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप करेंगे। ट्रांसफ़र में रॉयल्टी आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, इसी जो रॉयल्टी अमाउंट है ना, इसी को आप ट्रांसफ़र करोगे P&L में। फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज़ करोगे, टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी के अमाउंट से। सेकेंड ईयर जो रॉयल्टी अमाउंट है, तो सेकेंड ईयर रॉयल्टी का अमाउंट आपका कितना था, 2,42,500। ठीक है, इस अमाउंट से आप लैंडलॉर्ड को डेबिट करोगे 2,42,500। अब इसी रॉयल्टी अमाउंट को आप ईयर एंड में ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम अमाउंट से। ठीक, फिर थर्ड ईयर में आप उसको वापस से लैंडलॉर्ड को डेबिट करोगे, आपकी रॉयल्टी अमाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने जो कैलकुलेट किया था थर्ड ईयर में वो है 3,65,000। 3,65,000 का आपका रॉयल्टी है जो थर्ड ईयर का था, तो हम उसको लैंडलॉर्ड को 3,65,000 से डेबिट कर रहे हैं, और फिर इसी अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी अमाउंट क्या था, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी अमाउंट था 4,05,000। 4,05,000 का रॉयल्टी अमाउंट था, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, पहले लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद ड्यू करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ईयर एंड में। फिर उसके बाद आपका आ गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड का लेजर अकाउंट अब हम बना रहे हैं। लैंडलॉर्ड के लेजर अकाउंट में सबसे पहले तो हम ड्यू की एंट्री पास किए हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ हमने क्रेडिट किया है लैंडलॉर्ड को, तो क्रेडिट के साइड में हम जाएंगे और रॉयल्टी को लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट। कितने से करोगे, रॉयल्टी का फर्स्ट ईयर में कितना था, यही अमाउंट था ना रॉयल्टी का, तो इसी को हम लिख दिए। अब इसको पे करेंगे, पेमेंट में हम टू बैंक कर देंगे, इसी रॉयल्टी अमाउंट को हम पेड कर रहे हैं उसको, तो टू बैंक कर दिया। अगेन नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी बाय रॉयल्टी कर देंगे 2,42,000, फिर पेमेंट करेंगे इसी अमाउंट को, टू बैंक कर देंगे। थर्ड ईयर में रॉयल्टी हमारा कितना था जो लैंडलॉर्ड को देना था, 3,65,000। 3,65,000 का रॉयल्टी है, बाद में इसको बैंक पेड कर देंगे, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट कर देंगे। फिर फोर्थ ईयर में आपकी रॉयल्टी कितनी थी जो हमें उसको देना है, 4,05,000। 4,05,000 इसको हमने पेड कर दी। ठीक है, फोर्थ ईयर में, तो 4 साल का हमने यहाँ लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना दिया। तो इस तरीके से
आपका पब्लिशर की बुक में हमने रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड अकाउंट बना दिया। तो इसी के साथ हम रॉयल्टी चैप्टर अपना फिनिश कर रहे हैं और आप प्लेलिस्ट में पूरा रॉयल्टी फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 आपको मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड stay tuned with us for the next chapter of this financial accounting subject.